Hello students, now we are going to discuss a very important topic of grammar. Some part of this topic you have already understood in different chapters. The name of the topic I write first because the name is very interesting and it is subject verb agreement. What do you understand by this name? That there is an agreement between the subject of a sentence and its verb. And we all understand that the verb of the actually sentence changes according to the number of subject, and it changes as per the singular subject or the plural subject, and we use different form of helping verbs. So for example, you say he is a doctor, but when we change this word he and the subject is now they, of course the verb will be changing to are. They are doctors. So this is the agreement between the subject and the verb. This fixed thing is called subject agreement. Now in exams they may ask you different type of questions on this, and one more point I want to bring to your notice, that is subject of any sentence is either a noun or a pronoun. It means that whatever rules we learn during the discussion of nouns or pronouns will be very handy here and will be applicable. So we in the chapter of noun, if you go back and cross check, we discuss different type of nouns, countable nouns, singular nouns and plural nouns. And in singular or plural nouns we also discuss that some of the nouns which are always used in plural form, some which are always used in singular form, some that don't look like plural but they are actually plural, hence their verb will be also plural. So this kind of information related to subject you have already understood. Pronouns may be discussed कि आपका singular pronoun कैसे है one person, then we discuss about the plural pronouns में डिस्कस किया, और ऐसे प्रोनाउंस डिस्कस किए गए जिसमें आपने देखा कि someone, no one, nobody, one, each one, everyone, ये सब भी प्रोनाउंस हैं, neither, बट वो सब एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि all और both इस तरह के अगर प्रोनाउंस यूज करते हैं तो वो एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इट मीन्स दैट वी कैन यूज अ सिंगुलर वर्ब और अ प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस. तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर काम आएगी. इसलिए आपको जिस पॉइंट पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि टॉपिक से पहले एक बार नाउन और प्रोनाउंस को देख लेना चाहिए, और उसके बाद जो न्यू पॉइंट्स हैं इसमें नाउन प्रोनाउन के अलावा जिसमें आपको और ध्यान देना है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. रूल नंबर 1, यू सी आई डिस्कस विद यू इन कंजंक्शंस like the connecting linking words such as and. अब आप and word के साथ देखें कि ये बहुत सारे काम करता है, जैसे कि ये दो वर्ड्स को जोड़ देता है, दो से ज़्यादा चीज़ें हैं. अगर आप देखें कि दो सिंगुलर नाउन है या दो प्रोनाउन है उनको तो ऐड करता ही है, दो फ्रेजेस को ऐड कर देता है, दो क्लॉजेस को ऐड कर देता है. तो एंड के साथ में वर्ब किस तरह का आना चाहिए ये वेरी करता है और डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे. सो इसलिए एंड की साथ आने वाले अलग अलग तरह डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स को आप पहले पहचान. सबसे पहली बात, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर एंड से दो नाउन या प्रोनाउन ऐड हुए हैं, टू थिंग्स और टू पर्सन्स, if they have been added with, but if they represent only one idea, एक ही आइडिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. अगर वो डिफरेंट को आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी दो चीजें जो मिल करके जुड़ करके डिफरेंट आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर उसको प्लूरल वर्ब की तरह यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. नाउ इन दिस सेंटेंस दोनों नाउन राम एंड श्याम को कनेक्ट किया एंड से, और obviously they are two different things, not one idea, but we are talking about two different persons. इसलिए इसमें हम are यूज करेंगे, वो everybody knows. दूसरा इसका एग्जाम्पल एक देखिए, राजमा एंड राइस इज माई फेवरेट डिश. इसमें राजमा एंड राइस दोनों अलग अलग नाउन है, लेकिन दोनों मिल करके क्या हो रहा है, दोनों एक डिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो वर्ब होगा वो इज होगा. एंड को देख करके आपको नहीं जान करना, बल्कि उस आइडिया को दा. तो व्हाट आई सेड कि इफ टू नाउन्स कम टुगेदर और प्रोनाउंस कम टुगेदर एंड दे आर ओनली पार्ट ऑफ वन आइडिया, देन इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. दूसरा एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड एंड माय मेंटोर. शुड आई राइट इज और आर? आई गिव यू अ चॉइस, इसको जरा ध्यान से देखें, इज और आर हियर. दूसरा एग्जांपल इसमें स्लाइड चेंज करता हूं, माय फ्रेंड एंड मेंटोर. अगेन आपका चॉइस सेम है, इज या आर. अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ डू यू नो वेदर दे आर वन पर्सन, सेम पर्सन, और दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स. माई फ्रेंड एंड माई मेंटोर, इज और आर हियर. इस केस में देखिए जो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, और यहाँ पे भी माई प्रोनाउन के उसमें आपको पढ़ाया था, ये दोनों के दोनों
जगह पर माई ये डिटर्मिनर लिखा हुआ है। डिटर्मिनर कह सकते हैं, डिटर्मिनर का मतलब हो गया कि ये डिटरमिन करता है कि किसका फ्रेंड या किसका मेंटोर, मेरा, माई। सो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, माई और दिस और दैट और योर और सम, ये सब डिटर्मिनर की तरह यूज किए जा सकते हैं। तो ये कोई नया कैटेगरी नहीं है, बल्कि इन्हीं को एक दे दिया गया। ये एडजेक्टिव्स जैसे ही एडजेक्टिव्स ही हैं। माई फ्रेंड एंड माई मेंटोर इज और आर हियर। सिंस बिफोर फ्रेंड माई इज रिटन बिफोर मेंटोर ऑल्सो, इट मीन्स देयर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। जब टू डिफरेंट पर्सन्स होंगे तो आंसर हो जाएगा आर, इज नहीं होगा। तो फर्स्ट में तो आर हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में आपने देखा कि डिटर्मिनर माई इज रिटन बिफोर फ्रेंड, माई फ्रेंड एंड मेंटोर इज हियर, बिकॉज इट इज वन पर्सन, माई इज नॉट रिपीटेड। सो इट एक बार यूज हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर पर्सन, एंड आर विल नॉट बी यूज्ड। अब माई की जगह पर एनी आर्टिकल इज रिपीटेडली सेड और एनी अदर वर्ड, आर्टिकल द लिखा हुआ है, कोई आर्टिकल अ लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा रिपीट हो रहा है, योर है, माई है, हिज हर है, देन यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है द ऑथर एंड द पोएट हैज और हैव बीन awarded. In this sentence you see author is a noun, poet is another noun, article the is written separately before them. So it means there are two different persons. One is a poet, another one is a author. So the plural verb should be used have. Has is incorrect. अगर इस sentence में हम the author and poet, article the नहीं होगा, उस केस में it is one person. A person who is both author as well as poet. तो अगर मैं आपको कहता हूँ a black and a white cat, तो कितनी cats हैं? और अगर कहते हैं a black and white cat, how many cats? A black and a white, article repeated, it means there are two cats. A black and white cat, it means there is only one cat which is partly. So I hope this concept is clear, that when we use and, how we use the verb. Right. Let's now understand another rule number 2. And rule number 2 is related to our collective nouns. Remember what I told you earlier, that your understanding of nouns will be handy in this topic. Collective noun आपको याद होगा, one word given to one word attached or represents the entire class, group of people, says committee or association or parliament or class or army और टीम और जूरी, ये इन सब को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड ये रूल हम लोगों ने प्रोनाउन में भी डिस्कस किया था, और अभी फिर आप उसको समझने जा रहे हैं। देखिए, व्हाट आई डिस्कस्ड अर्लियर, दैट यू रिमेंबर, दैट केस नंबर 1 वाज दैट व्हेन वी यूज कलेक्टिव नाउन टू रिप्रेजेंट यूनिटी, अगर यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट करता है, उस केस में वी टेक इट एज अ सिंगुलर वन, हेंस द वर्ब विल बी सिंगुलर। सो उस केस में हम सब्जेक्ट जो है, जो हमारा कलेक्टिव नाउन CN है, इसको सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर मानते हैं, इसलिए जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल देखिए, द टीम इज यूनाइटेड अंडर कोहलीज कैप्टनसी। दूसरी तरफ अगर आपका कलेक्टिव नाउन डिफरेंसेस को शो करता है, डिविजन्स को शो करता है, इन दैट केस क्या करेंगे, इसको हम प्लोरल नाउन की तरह लेंगे। तो कलेक्टिव नाउन वहाँ पर हमारा एक प्लोरल सेंस की तरह लिया जाएगा, और जो वर्ब आएगा उसके साथ वो प्लोरल होगा। इसका एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल आपने देखिए यहाँ किया, द टीम इज यूनाइटेड अंडर कोहलीज कैप्टनसी। अब अगर इस टीम कलेक्टिव नाउन में डिफरेंसेस को शो किया जाए, सेंटेंस लिखा हो, द टीम इज और आर डिवाइडेड ओवर कैप्टनसी issue. Now R will be correct because it conveys the sense of difference. Hence it will be taken as plural. So if the example is the audiences have taken their seats, correct है, क्योंकि अलग अलग seats हैं सबकी. But if it is written that the audience is listening to the speaker intently, तो यहाँ एक unity को show कर। अगर sentence है the parliament is divided over the bill, then it's wrong because divided है, R होना चाहिए। अगर सेंटेंस ये है कि द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल यूनानिमसली, देन यूनिटी है और हैज इज करेक्ट देयर। तो इस कलेक्टिव नाउन का रूल पहले भी डिस्कस हो चुका है। प्रोनाउन से रिलेटेड अभी आपको वर्ब से रिलेटेड बता दिया गया। यहाँ मैं रिपीट कर दूं कि जो कलेक्टिव नाउन का रूल आप यहाँ पर वर्ब से रिलेटेड देख रहे हैं, वर्ब सिंगुलर या वर्ब प्लूरल ले रहे हैं, सेम प्रोनाउन पे भी यही एप्लीकेबल होता है। वो भी इसी तरह से सिंगुलर लेंगे, और अगर प्लूरल डिफरेंसेस होंगे तो उसको प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। अब सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा कि उस केस में हम यूज करेंगे, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो इट यूज करेंगे,
करेंगे या हिज यूज करेंगे या हर यूज करेंगे, और अगर वो डिफरेंसेस को शो करता है तो प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि देयर यूज करेंगे, राइट। उसको आप पीछे जा करके देख सकते हैं, यहाँ आपको वो पॉइंट भी रिवाइज हो। लेट अस मूव टू रूल नंबर 3। सिंस प्रोनाउन की थोड़ी सी बात चली तो आपको वो सारे प्रोनाउंस भी याद होंगे जो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन ये प्रोनाउंस भी आपके सिंगुलर सेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वर्ड्स जब यूज करते हैं ईच, एवरी या ओ एनी वन, किसी के लिए मैथमेटिक्स वाला वन नहीं है, इसका सेंस है किसी, कोई, एनी, समवन, समबडी, जितने भी बडी वाले और वन वाले वर्ड हैं, नो बडी, नो वन, ये जितने भी वर्ड्स प्रोनाउंस हैं, इनके बाद अगर आप कोई वर्ब यूज करेंगे, एक तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल नहीं होगा, उसको भी हम सिंगुलर में यूज करेंगे। इनके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में यूज किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, और इनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। देखिए, बॉयज नहीं हो सकता ईच के बाद, और गर्ल्स नहीं हो सकता क्योंकि ईच लिखा हुआ है पहले, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। ईच बॉय and each girl is serious about his career। देखिए, यहाँ पर वर्ब is ठीक है, ये नहीं समझेंगे कि हम बॉय और गर्ल को एक साथ ऐड कर रहे हैं, एक बॉय और एक गर्ल तो प्लूरल हो गया। नो, इट मीन्स वन टेकन एट अ टाइम, वन इंडिविजुअल एट अ टाइम, बी इट अ बॉय और अ गर्ल। सो इस वर्ब ठीक है, करेक्ट है। सीरियस अबाउट हिज करियर, यहाँ मैं आपको पॉइंट एक बता दूं कि अभी मॉडर्न इंग्लिश में, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी इसको देयर को वो एक्सेप्ट करते हैं, THEIR, देयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सही मानते हैं। आप बॉय और गर्ल दोनों अलग अलग सेक्स के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं, तो कंबाइन करके इसको THEIR, देयर को लेते हैं प्लूरल सेंस में। लेकिन हमारे एग्जाम सिस्टम में अगर ये पैटर्न है हमारे एग्जाम का, उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको हिज ही लेंगे। ये पुराना ओल्ड इंग्लिश वाला जो फॉर्मूला है वही काम कर रहा है। तो ये चीज़ अभी आई थॉट टू शेयर विद यू, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना कि हम यहाँ पर हिज को सही लेंगे, या तो हिज और हर दोनों लिखा हो लेकिन देयर नहीं लेंगे, और हिज की जगह पर हर को नहीं यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश स्कूल का फॉर्मूला इंग्लिश का वो यहाँ पर काम करता है, हमारे एग्जाम सिस्टम में वही फॉलो हो रहा है अभी तक। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज सीरियस अबाउट हिज करियर। अब अगर आप इस सेंटेंस में समवन की बात करते हैं, समवन is at the door, so of course इस सेंटेंस में you can only take is, are नहीं कर सकते हैं आप क्योंकि सिंगुलर रिप्रेजेंट करते हैं। so going back, ये जो लिस्ट, जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स के हिसाब से आपको याद रखना है कि इन सारे वर्ड्स के बाद हम नाउन सिंगुलर लेंगे और वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। अब इनके साथ एक इसी रूल में थोड़ा सा ऐड, थोड़ा सा चेंज, रूल नंबर 4। देखिए उसमें क्या होगा कि यही ईच और ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पर आपने देखे, उनमें अगर हम ऑफ का यूज करें, जैसे ईच ऑफ या एवरी ऑफ या ईदर ऑफ या नीदर ऑफ या वन ऑफ, जब इनका यूज करते हैं तो इनके बाद जो नाउन आता है, प्लस के साथ मैं लिख रहा हूँ, यानी इन सब के लिए इनके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में रहता है, PL प्लूरल में रहेगा, और फिर जो वर्ब आता है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर में होगा। इसको याद रखेंगे, यहाँ का कॉम्बिनेशन है ये। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। Either of the boys is ready to take up challenge। अब याद होगा आपको, हमने बताया था either हम 2 नंबर के लिए यूज करते हैं, या ये या वो, 2 में से कोई एक। 2 से ज्यादा नंबर के लिए नहीं आता, नीदर भी 2 से ज्यादा के लिए नहीं आता। अगर 2 से ज्यादा के लिए यूज करना है तो ईदर की जगह वन का यूज करते हैं, वन ऑफ, और अगर नीदर की जगह यूज करना है 2 से ज्यादा का तो फिर नन ऑफ यूज करते हैं। ये डिस्कस हो चुका है प्रोनाउन में। अभी आप इसको देखें, ईदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू टेक अप द चैलेंज। देखिए बॉयज आएगा ऑफ के बाद, ईदर ऑफ द बॉयज प्लूरल नाउन, और लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहे। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये पूरे ग्रुप के लिए काम करता है। यहाँ वन ऑफ को देख लें, वन ऑफ माई टीचर्स इज फ्रॉम दिल्ली। आफ्टर वन ऑफ मैंने आपको बताया प्लूरल नाउन यूज करते हैं, माई टीचर्स, टीचर नहीं होगा, लेकिन जो वर्ब आया है वो वर्ब सिंगुलर है। यहाँ एक और बात ध्यान में रखिएगा कि वन ऑफ से अगर सेंटेंस, कभी कभी आप देखेंगे कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो तो ऑलवेज प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर की जगह कभी कभी प्लूरल भी हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा हमको कि प्लूरल होना चाहिए या सिंगुलर होना चाहिए? एक तो उस सेंटेंस के सही कॉन्टेक्स्ट को अगर आप समझेंगे, ध्यान से उसकी मीनिंग को देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ये कहता है वन ऑफ माई टीचर्स इज फ्रॉम दिल्ली। ये इसके कई सारे टीचर्स हैं, मान लीजिए ये सर्कल में जो मैं क्रॉस बना रहा हूँ ये सब टीचर्स हैं इसके, और ये उनमें से किसी एक की बात करता है, तो ये वन की बात कर रहा है। वन ऑफ माई टीचर्स इज
अब ये टीचर कहाँ से है, सिर्फ इनकी बात हो रही है इसलिए इज सिंगुलर आ गया वर्ब। तो कॉन्टेक्स्ट से आपको लगता है कि इस ठीक है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब मैं इसी टीचर की बात कर रहा हूँ। ही इज, यानी इस टीचर के लिए ही यूज किया जा रहा है। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। देखिए इस एग्जाम्पल में ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। वन ऑफ तो यहाँ है, दोज पीपल आ गया, उसके बाद प्लूरल हो गया हु ऑलवेज। अब ये दोज पीपल के बाद ऑलवेज के बाद जो वर्ब लिखा है स्पीक, देखिए अगर सिंगुलर होता तो स्पीक्स लिखा जाता, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये वर्ब स्पीक जो आ रहा है वो उन सारे लोगों के लिए आ रहा है जो सच, तो ये टीचर उनमें से एक है, इसलिए यहाँ वन ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब स्पीक करेक्ट है, लेकिन यहाँ वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट। तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं। अब मैं अगर इसका विजुअल आपको दिखाऊं इसी तरह से जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया पहले वाले का, तो देखिए ये टीचर जो है जिसकी बात कर रहे हैं, जो क्रॉस आपने बाहर किया था, ये टीचर उन लोगों में से एक है। कौन से लोग? ये सारे लोग जो ये डॉट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सच बोलते हैं। ये वर्ब प्लूरल इनके लिए आएगा क्योंकि अब सारे इन लोगों की बात हो रही, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ये समझ में बात थोड़ी सी मुश्किल लगे कभी, तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक वी कैन कॉल इट कि इट्स अनदर जुगाड़ विद्या है, ये वहाँ पे काम कर सकती है। वो ये है कि वन ऑफ से अगर सेंटेंस बिल्कुल वन ऑफ बिगिनिंग में आ रहा है, बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर के फॉर्म में ही रहे। लेकिन अगर वन ऑफ बिगिनिंग में नहीं आ रहा है, जैसे दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ही इज लिखा हुआ है, ही पहले लिखा हुआ है, वन ऑफ उसके बाद आ रहा है, तो यहाँ पर आप प्लूरल का सेंस आ सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझ के चलें, वो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज यू कैन यूज दिस फार्मूला ऑल्सो। सो आई हैव डिस्कस विद यू, ऑफ के साथ में हम ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। नाउन साथ साथ बताता चल रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि नाउन में भी कई बार एरर मिल जाए, वर्ब सही फॉर्म में लिखा हुआ हो और आपका सारा ध्यान वर्ब पे हो, नाउन आप ना चेक कर पाए। सो इसलिए यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। Let us move to our rule number 5. Rule number 5, I want to start with an example. पहले एग्जाम्पल देखेंगे तो बात थोड़ी सी समझ में आएगी, फिर रूल को समझ लिख लेंगे। देखिए 20,000 rupees is या are not a big amount. कहता 20,000 रुपया एक बड़ी रकम नहीं है। हाँ, ठीक बात है आजकल के ज़माने में, बट हमारा सवाल पर्पज़ यहाँ पे पैसे की रकम की बात नहीं, आपको देखना है कि वर्ब कौन सा सूट करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा, 20,000 रुपीज। नाउ दूसरा सेंटेंस देखिए, 20,000 रुपीज वॉज और वर, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, वर स्पेंट टू अरेंज द बर्थडे। दोनों जगह आपके पास चॉइस है, सिंगुलर वर्ब है आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। 20,000 रुपीज, देखिए 1000 लिखते हैं हम नंबर्स के बाद में 1000 या 100 लिख रहे हैं, तो फिर उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। नाउन्स में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ 20,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इज। इसको मैं इनसर्किल करता हूँ, आर को कट किया। और दूसरे एग्जाम्पल में 20,000 रुपीज वॉज या वर स्पेंट टू अरेंज द बर्थडे पार्टी, यहाँ द करेक्ट आंसर इज वर, यहाँ पे वॉज इनकरेक्ट है। क्यों है ऐसा? दोनों जगह सब्जेक्ट 20,000 रुपीज था। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहले एग्जाम्पल में वर्ड है अमाउंट, यहाँ हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, रकम की बात कर रहे हैं। तो जब भी कभी हम अमाउंट, डिस्टेंस, वेट, पीरियड, अवकाल जो पूरा टाइम का है, या हाइट, इसकी बात करेंगे, तो फिर उस केस में हम उसको सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग लेंगे, सिंगुलर वर्ब उसमें चूज किया जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लूरल फॉर्म यानी 20,000 रुपीज सब्जेक्ट एक्चुअली नहीं बल्कि एक अमाउंट से रिलेट किया जा रहा है, तो ये अमाउंट की बात के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आपको देखिए यहाँ अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 20,000 रुपीज वर स्पेंट, अब ये कितने पैसे खर्चा हुए, तो ये प्लूरल सेंस में यहाँ पे वर्ब आएगा। सो नाउ द रूल वी कैन राइट, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं सेंटेंस को कहीं, एक और एग्जांपल कर लें, उसके बाद सपोज इट्स रिटन दैट 500 किलोमीटर्स इज या आर अ बिग डिस्टेंस। 500 किलोमीटर्स इज बिग डिस्टेंस, so the correct answer is because we are talking about distance, तो सिंगुलर फॉर्म में। नाउ तो दूसरे फॉर्म को देखिए, 500 किलोमीटर्स वर कवर्ड इन अ डे, एक दिन में कवर किए गए। यहाँ पे वर्ब बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप यहाँ पर किसी एक डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। सो
Let's write down the rule for number 5. The rule is if a numeric value, मतलब संख्या कोई नंबर लिखा हुआ है, is written for distance period, जैसे 100 years is a big period, तो is use करेंगे आप period, wait. If a numeric value is written for a distance or period or weight or amount, the verb should be used singular form. तो examples मैंने आपको दिखा दिए, इसके रूल आपने समझ लिया यहाँ पर. Let's move to नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 6. देखिए रूल नंबर 6 में कनेक्टर्स की बात करें. कनेक्टर्स कंजंक्शंस में आपने पढ़े, कनेक्टिंग लिंकिंग वर्ड्स. अब डिफरेंट कनेक्टर्स के साथ में कुछ अलग तरह का रूल हो सकता है. कभी ऐसे सेंटेंसेस जब आप देखेंगे जिसमें इन विच यू कम अक्रॉस दैट डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर रिटन, यानी सपोज अ कनेक्टर is written, for example correlating pairing conjunctions are written, और उसमें आप देखते हैं कि एक ईदर के साथ में तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन लिखा हुआ है, बट और के बाद प्लूरल लिखा हुआ है, या नीदर के पहले प्लूरल लिखा हुआ है नीदर के साथ में, और नॉर के साथ में सिंगुलर लिखा हुआ है. तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. यानी सब डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इफ दे आर रिटन, देन you have to decide or you have to understand that the verb should be according to which subject. और यहाँ confusion हो सकता है. अगर दोनों में एक ही जैसा नंबर है तब तो थोड़ा सा इतना डाउट नहीं होगा, because if singular present is written at both places तो ठीक है, समझ में आ जाता है. लेकिन if plural subjects are written at both places तब भी डाउट नहीं रहता. लेकिन if singular plural cases are written, then उस केस में हम कैसे करेंगे. तो पहले एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एंड देन वी विल. सो जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ वो सेंस ये है. एग्जाम्पल 1, ईदर राम और हिज ब्रदर्स. अब देखिए मैंने ईदर के साथ तो राम सिंगुलर को लिखा, लेकिन और जो इसका पेयरिंग है उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट को लिखा, हिज ब्रदर्स. एक से ज्यादा हो गया. ईदर राम और हिज ब्रदर्स. अब क्या यूज करना चाहिए यहाँ पर, इज, इसमें से आपकी चॉइस है. कमिंग टू अटेंड द पार्टी. ऐसे एग्जाम्पल देखें, द एमपी एज वेल एज हिज सपोर्टर्स हैज और हैव बीन सिटिंग ऑन अ धरना. धरना जो वर्ड है उसको हम इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं. अब यहाँ आपका सब्जेक्ट है द एमपी, सिंगुलर फॉर्म में है. एज वेल एज यहाँ पर एक कनेक्टर है, जैसे वहाँ ईदर और था, या उसके साथ हिज सपोर्टर्स जो कि प्लूरल फॉर्म में है. अब हैज या हैव या सिंगुलर वर्ब लेना है या फिर हैव प्लूरल वर्ब लेना है. एक और एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली द, एग्जांपल नंबर 3 देखिए, नॉट ओनली द एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बट स्टाफ मेंबर्स हैज हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, was या were, but his staff members also suspended. Now नॉट ओनली द एचओडी सिंगुलर है और स्टाफ मेंबर्स देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल. तो यहाँ पे एक जेन्युइन डाउट होता है कि हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे. अब इसका बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि कुछ कनेक्टर्स के साथ में, तो पहले हम उस टेबल में चलते हैं. तो सो फर्स्ट यू लुक एट दीज एग्जांपल्स एंड दीज एग्जांपल्स आर जेन्युइनली कंफ्यूजिंग. अब इनमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि दोनों सेंस बन रहा है कि प्लूरल जाए, सिंगुलर वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे. तो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं, और वो एक सीधे एक टेबल में आपको बताता हूँ जिसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर देंगे कि अगर ये कनेक्टर है तो हम किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे. अब देखिए इसमें सेंटेंस के बिगिनिंग में जो आ रहा है इसको लेट्स टेक दैट सब्जेक्ट नंबर 1. ये हमारा पहला सब्जेक्ट है जो पहले आ रहा है बिगिनिंग में, और जो दूसरा सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स, इसको कर लें सब्जेक्ट नंबर 2 सेकेंड. ऐसे ही सारे सेंटेंसेस में आप समझ लें सब्जेक्ट 1 जो पहले आया और सब्जेक्ट 2 जो बाद में आया. अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पर इस रूल को मैं लिख देता हूँ. ये जो रूल नंबर है ये 6 वी आर डिस्कसिंग. सो रूल नंबर 6 का पॉइंट ये है दैट द वर्ब्स एंड प्रोनाउंस के साथ भी यही फॉर्मूला यूज होगा. एंड प्रोनाउंस with the following connectors should be used in accordance. The verbs and pronouns with the following connectors should be used in accordance with the table. अब इस टेबल के हिसाब से आप देखें. इस टेबल में सबसे पहली चीज़ है तो आप देखें कि डिफरेंट कनेक्टर्स कौन कौन से हैं. इस कनेक्टर्स के साथ में फिर दूसरी चीज़ आपने देखी यहाँ पर कि एक जगह सब्जेक्ट कहीं पे एक है, फर्स्ट है, और कहीं कहीं सब्जेक्ट, और साथ में जो बाद वाला सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 2 है. देखिए आपका कनेक्टर अगर एज वेल एज है या कनेक्टर है विद की जगह पर कई बार along with, कभी कभी together with, बट यहाँ पर बेस वर्ड with है. एज वेल एज with का केस देख लिया आपने. इसी तरह से अगर है in addition to
बिसाइड्स लिखा हुआ है या एक्सेप्ट लिखा हुआ है या लाइक या अनलाइक, इन सब केसेस में आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वर्ब सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट को देख करके चूज करना है। और फर्स्ट सब्जेक्ट को चूज करने का मतलब हो गया कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है देन द वर्ब शुड बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब शुड बी। तो टिक का मतलब हो गया कि इन कनेक्टर्स को देखते ही आप देखेंगे सब्जेक्ट वन का कौन सा नंबर है, सिंगुलर है, प्लूरल है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल चूज द। तो बहुत सिंपल है। पीछे देखते हैं ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, सेंटेंस यहाँ पर था द MP एज वेल एज, अब देखिए एज वेल एज का केस आपके सामने है, हिज सपोर्टर्स। अब द MP फर्स्ट सब्जेक्ट है इसलिए इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा और हैज चूज किया जाएगा सिंगुलर। अगर ये द MP की जगह MPs होता और एज वेल एज के साथ में सपोर्टर्स लिखा होता एंड देयर सपोर्टर्स तो हम हैव चूज कर सकते थे। तो सीधा फॉर्मूला है। आइए दूसरे कनेक्टर्स देखते हैं, इसी टेबल को कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट 2, अगर आपका कनेक्टर और है या ईदर और है, कनेक्टर कई बार नॉर अकेला लिखा हुआ है या नीदर नॉर है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये भी यूज किया जाता है साथ में। इन सब के साथ में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ कुछ नहीं देखना है, सेकेंड सब्जेक्ट जिस नंबर में है इफ इट इज सिंगुलर देन सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप यूज कर देंगे वर्ब, और अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म आ जाएगा। सो बस सेकंड के अकॉर्डिंग। लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल। देखिए यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला है। नॉट ओनली द HOD but his staff members was ever also suspended। तो यहाँ करेक्ट सेकंड सब्जेक्ट आपका स्टाफ मेंबर्स है जो कि प्लूरल है, तो इसलिए जो वर्ब आएगा वो वर्ब हो जाएगा, was इनकरेक्ट है। मूविंग टू द फर्स्ट एग्जांपल, देखिए यहाँ ईदर राम और हिज ब्रदर्स, सेकंड के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट हिज ब्रदर्स प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगा, इज रॉन्ग हो जाएगा। सो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि हम वर्ब अकॉर्डिंगली कैसे चूज करेंगे। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अनदर रूल। देखिए if one idea is being conveyed, though you come across that and is used and different two nouns are used, then the verb should be used in singular form। कि रूल नंबर 7 में आपको उन पॉइंट्स को मैं बताना चाहता हूँ where one idea is being conveyed, though to convey this idea you come across two different nouns are written। दो अलग अलग चीजें एक साथ जुड़ करके एंड के साथ में लिखी हुई हैं, लेकिन दे कन्वे टुगेदर वन आइडिया, देन ऑब्वियसली द वर्ब शुड सिंगुलर फॉर्म। अब ऐसे कुछ फिक्स एग्जांपल हैं, उनमें डाउट्स कई बार एग्जाम में हॉल में ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया तो हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए आपने पढ़ा होगा, दिस इज अ सेइंग, ये कहावत है कि टाइम एंड टाइड, वेट और वेट्स। आपने तो सही वाला पढ़ा है, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे करके इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। फॉर नन कहता समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखिए वेट, यहाँ पर अगर वर्ब को देखें वेट तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा और वेट्स एस वाला सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे ही बनाते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सीधे कहेंगे कि सर वेट प्लूरल वर्ब, लेकिन प्लूरल वर्ब रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टाइम और टाइड ये दो अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर के एक ही बात कर रहे हैं और वो है अपॉर्चुनिटी की, समय की, अवसर की। तो वो अवसर, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा वेट्स फॉर। सो सेम आइडिया इज बीइंग कन्वेड। अगर आपको एग्जांपल मिलता है ब्रेड एंड बटर इज या आर द बिगेस्ट वरी ऑफ अ पुअर मैन। एक गरीब आदमी की बड़ी चिंता क्या है? ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर से हम मतलब अलग अलग दो नाउन्स के सेंस में नहीं लेंगे इसको, बल्कि इसका मतलब होता है खाना, भोजन, रोटी, जिसको आप कहते हैं, मतलब एक चिंता है। अब यहाँ आर नहीं चूज करेंगे बल्कि इज चूज करेंगे, क्योंकि आइडिया वन है। ब्रेड एंड बटर इज द बिगेस्ट वरी ऑफ अ पुअर मैन। तो रूल नंबर 7 को याद रखेंगे कि इफ आइडिया इज सेम देन द वर्ब शुड बी सिंगुलर फॉर्म। सो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट आइडिया इज बीइंग कन्वेड थ्रू द सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ द आइडिया, ये जो आइडिया आपको आ रहा है ये एक ही है, इसलिए यहाँ पर आप वर्ड सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। कई बार एग्जाम्स में आपको एक वर्ड मेनी लिखा हुआ मिल सकता है, मेनी। अब मेनी तो सब जानते हैं, मेनी, अ गुड मेनी, तो मेनी माने बहुत सारे हो गए, या अ गुड मेनी बहुत सारे। लेकिन मेनी आ जब आता है तो ये खास तरह का फ्रेज हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है कि मेनी आ के बाद अगर कोई नाउन लिखा हुआ है, मान लें कि, तो वो नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहिए, एस लगा देता हूं मैं यहाँ, और जो इसके बाद वर्ब आएगा वो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में। एग्जाम्पल देखिए, मेनी सोल्जर वॉज किल्ड इन
वर्ल्ड वॉर 1। अब यहाँ वॉज सही है, सोल्जर सही है। सेंटेंस में अगर सोल्जर्स लिखा होता तो रॉन्ग होता और वर्ब भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेनिया के साथ में याद रखना है नाउन सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। इसका सेंस क्या होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कभी कभी इन जनरल हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगुलर सेंस में बात करते हैं। हिंदी में भी आपने ऐसा सुना होगा कि आप कहते हैं कि आदमी ऐसा करने से डरता है, आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए वो। तो यहाँ किसी एक खास आदमी की एक नंबर की बात नहीं हो रही, बल्कि सबकी इन जनरल बात होती है, तो लेकिन एक इंडिविजुअल के फॉर्म में बात हो रही है। तो वही सेंस इससे कन्वे होता है, इसलिए इसमें सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेट अस डिस्कस अनदर इंस्टेंस जहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, और वो केसेस हैं जब हम परसेंटेज या नंबर या इसकी तरह की बात करते हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट हियर बिफोर परसेंटेज एंड नंबर आई गिव यू द बेसिक आइडिया अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से एडजेक्टिव्स या फ्रेजेस का यूज करते हैं। यहाँ ये देख लें कि जब जो भी क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए या नंबर बताने के लिए जो एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं या सिंगुलर एडजेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे डिवाइडेड हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर्स, एन का मतलब हो गया नंबर्स। अब नंबर से आप समझ जाएंगे कि ये काउंटेबल नाउन की बात की जा रही। और यहाँ लिख रहा हूँ क्यू, क्यू का मतलब क्वांटिटी मात्रा, यानी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, राइट। तो सी एन करके मैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन यूएन क्वांटिटी के साथ में। अब कौन से एडजेक्टिव कौन से वर्ड आते हैं जो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना नंबर है, और क्वांटिटी के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो इस पहले इसको देखिए। देखिए नंबर्स वाले चीज़ों के साथ जब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो हम आर्टिकल और एन का यूज करते थे, याद होगा आप। एक तरह से ये भी एक रिप्रेजेंट करते हैं किसी काउंटेबल अनकाउंटेबल को, लेकिन अ और एन का यूज आप क्वांटिटी में नहीं कर सकते। यानी अनकाउंटेबल नाउन अ वाटर और अ लिक्विड अ गोल्ड नहीं कर सकते, वाटर नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल द जो एक ऐसा आर्टिकल था कि उसका यूज आप दोनों जगह कर सकते थे। आप द का यूज यहाँ भी कर सकते थे, द आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप फ्यू का यूज तो नंबर्स के साथ में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी जगह आप यूज करते हैं लिटिल। मच का यूज मेनी कर सकते हैं आप नंबर्स में यूज, और उसका काउंटर पार्ट है मच, यानी मच को यूज करते हैं क्वांटिटी में। अब कहते हैं मेनी सोल्जर्स, लेकिन लिटिल वाटर, मच शुगर, मच फूड ग्रेन, ये ऐसे यूज करते हैं। नाउन्स में ये सब डिस्कस किया था, थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ में समझते जाइए। आगे की जो बात कहना चाहता हूँ इसके बाद क्लियर हो जाएगी। तो मेनी को कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर कुछ बड़ा हुआ तो आप कहते हैं ना नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ करके यहाँ पे फ्रेज यूज करते हैं। यहाँ पे उसकी जगह फ्रेज यूज करते हैं अमाउंट ऑफ, कभी एडजेक्टिव लगा देते हैं ग्रेट अमाउंट ऑफ, लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ, तो अमाउंट ऑफ यूज कर सकते हैं बेस। ओके इसी प्रकार से आप यहाँ यूज करते हैं मेजॉरिटी नंबर्स के साथ में मेजॉरिटी ऑफ, लेकिन अगर सेंटेंस में वहाँ मेजॉरिटी लिखा है क्वांटिटी के साथ तो वो रॉन्ग है, वहाँ मेजॉरिटी नहीं यूज करते हैं, बट हम उसकी जगह पर कह सकते हैं मोस्ट ऑफ या कुछ इस तरह का यूज हो जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ तो काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। वो मैं कॉमन वाले आगे आपको बता देता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ। इसी तरह से आपने यहाँ देखिए क्वांटिटी में एक फ्रेज यूज करते हैं ग्रेट डील ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम। अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एक से दूसरी जगह भेजने में इधर उधर हो जाता। लेकिन अ ग्रेट डील ऑफ फिर आप यहाँ नहीं यूज करते, यानी इस जगह पर आप क्रॉस में बनाता हूँ, यानी नाउन के साथ काउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज कर सकते। तो अगर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है अ ग्रेट डील ऑफ सोल्जर्स, इनकरेक्ट है। अ ग्रेट डील ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट है। या मेजॉरिटी ऑफ वाटर, इनकरेक्ट है, मोस्ट ऑफ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये एरो आपको बना दिया यहाँ पर, क्रॉस का मतलब ये हो गया। अच्छा फिर कुछ कॉमन यूज किए जाते हैं, जैसे आप सम ऑफ कर सकते हैं दोनों जगह। इसी तरह से तो सम ऑफ यहाँ भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कैटेगरी है जैसे आप अ लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं दोनों जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। टिक का मतलब ये दोनों कॉमन है। इसी तरह से आप प्लेंटी ऑफ यूज कर सकते हैं दोनों जगह पर, इसमें भी कोई कैद नहीं है। आप कह सकते हैं प्लेंटी ऑफ एप्पल्स काउंटेबल, और आप कह सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर या प्लेंटी ऑफ नॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ये टेबल को ध्यान में रखिएगा। और मोर और मोस्ट, यस मोर और मोस्ट भी दोनों जगह कॉमन है, सिर्फ मच और मेनी का अंतर है। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है एडजेक्टिव एडवर्ब में, बट यहाँ मैं इसको छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। मोर
और मोस्ट दोनों का यूज दोनों। अब ये देखिए कि यहाँ एक साथ ही आप समझ लें कि जितने भी हमारे ये नंबर्स हैं इन सब के साथ, यानी जो नंबर वाले नाउन्स हैं इनके साथ अगर कोई भी हम वर्ब यूज करें, वर्ब हमारा जो होगा वो प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। ये सिर्फ आर्टिकल आ और एन को छोड़ दीजिए, आर्टिकल आ और एन को छोड़ देते हैं कि ये फ्यू से समझिए, फ्यू से लेकर के बॉटम तक। आ और एन के बाद आपको पता है सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है तो ऑब्वियसली वर्ब सिंगुलर होगा। द के साथ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, द बॉय भी हो सकता है, द बॉयज भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल। लेकिन फ्यू से स्टार्ट करें और मेनी और नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, इन सब के साथ जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो सीधे सीधे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरा राइट साइड में क्वांटिटी की तरफ देखिए, यहाँ पे जितने भी फ्रेजेस लिखे हैं इन सब फ्रेजेस में कोई सा भी फ्रेज हो, देखिए आर्टिकल द को भी इंक्लूड कर लीजिए, सभी के साथ वर्ब जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल नाउन। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप अगेन सेंटेंस को इन जनरल वे में यू कैन क्रॉस चेक इफ देयर इज एनी एरर रिलेटेड टू दिस पार्ट। अनदर बेसिक बट कंफ्यूजिंग पॉइंट, और वो पॉइंट है कि जब परसेंटेज और नंबर करके कुछ लिखा होता है तो फिर वहां पर रूल कैसे होता है। पहले मैं एग्जांपल्स बताता हूँ आपको, फिर आप खुद समझ जाएंगे। द नंबर candidates has or have this year. Example number 1. Example number 2. A number of students has or have passed the exam. Third example. Percentage of the successful candidates is more than that of last year. So, first example को देखिए. The number of the successful candidates हैज या हैव गॉन अप दिस ईयर। ये बात करता है नंबर, उस नंबर की जो पासिंग स्टूडेंट हुए हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए हैं इस साल। तो इस नंबर की बात की, मान लिए वो नंबर x है, वो नंबर बढ़ गया, तो सिर्फ नंबर की बात की जा रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज सही आंसर होगा, हैव रॉन्ग होगा। दैट नंबर हैज गॉन अप, सपोज दैट नंबर वाज 70। अब वो नंबर तो सिंगुलर है ना, 70, आप 1 to 70 की बात नहीं कर रहे हैं पूरे, ये प्लूरल के फॉर्म में नहीं, बल्कि सिर्फ 70 की बात की जा रही, तो दैट नंबर हैज गॉन अप। तो वो जो भी नंबर था 70 था वो 85 हो गया, नंबर हैज गॉन अप। लेकिन द सेकंड एग्जांपल में अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपने अभी देखा प्लूरल फॉर्म को करता है रिप्रेजेंट, इसलिए इसमें तो हैव यूज होगा, हैव नहीं, क्योंकि बहुत सारे की बात कर रहे हैं। थर्ड में कहते हैं द परसेंटेज ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज और आर मोर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। अब यहाँ बात जैसे नंबर की कर रहा था वैसे यहाँ से परसेंटेज की बात कर रहा है। अब वो परसेंटेज हो सकता है 70 हो, 80 हो, 90 हो, कोई भी, तो यहाँ पर सिंगुलर आपको वर्ब लेना होगा, इज सही है, आर रॉन्ग है। थोड़ा सा ध्यान देंगे नंबर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को करेंगे। इसी को कंटिन्यू रखते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। सपोज नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 90% ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, 90% of the successful candidates is या are willing to join government jobs। अब इस सेंटेंस में 90% of the successful candidates, अब मैं इसी का साथ 5th सेंटेंस लिखता हूँ। 90% of the food grain is या are rotten का मतलब सड़ा हुआ। दोनों को देख लीजिए, 90% ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो इसलिए यहाँ पर आर होगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है कैंडिडेट्स। तो जब उसकी परसेंट की बात की जाएगी तो प्लूरल फॉर्म लेंगे आप, प्लूरल वर्ब इज नहीं आएगा। लेकिन दूसरे केस में 90% ऑफ द फूड ग्रेन्स को अनकाउंटेबल नाउन की तरह लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इज करेक्ट आंसर है, आर रॉन्ग है। तो 90% ऑफ द फूड ग्रेन्स इज रॉटन। तो परसेंट के साथ में ये देखना होगा कि परसेंट किसकी परसेंटेज की बात कर रहा है, चाहे 80% हो, 90% हो, 70% हो, ये जो भी नंबर लिखा है इसके बाद आपका काउंटेबल नाउन आ रहा है या अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा, सीधा सा। तो इस तरह से इस पॉइंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस 90% के साथ जो भी पॉइंट बोला मैंने, वही सेम 1/3 अगर इस तरह से किसी को पार्शियली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या 1/4 या क्वार्टर ऑफ या हाफ ऑफ, इनके बाद भी आपको देखना है कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो फिर आप उसमें ऑब्वियसली जो वर्ब लेंगे प्लूरल फॉर्म में लेंगे। अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल इसका मैं लिख देता हूँ 1/3 के साथ। 1/3 ऑफ द एम्प्लॉइज इज या आर अंडर, शॉर्ट फॉर्म में अंडर 50 एज ग्रुप। सो यहाँ पर ऑब्वियसली एम्प्लॉइज आपका प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब आएगा आर, इज रॉन्ग हो जाएगा। काउंटेबल नाउन है इसलिए वर्ब प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आप कहते हैं 1/3
of the water is या are contaminated, गंदा है. 1/3 of water is contaminated, क्योंकि water आपका countable noun है. 1/3 of water is contaminated. तो इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को. और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको नाउन्स के डिफरेंट नंबर्स के, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर की तरह साउंड नहीं करते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल की तरह साउंड करते हैं लेकिन प्लूरल नहीं होते, और उसमें पूरी वेराइटीज़ बताई थी. उनमें जैसा फॉर्म है नाउन का कि उसको माना कैसे जाता है, उसकी अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल सीजर्स को प्लूरल की तरह लेते हैं तो वहाँ पर वर्ब आएगा प्लूरल फॉर्म में. लेकिन न्यूज़ सिंगुलर की तरह है जबकि साउंड कर रहा है प्लूरल की तरह, एस लगा हुआ है, लेकिन वर्ब लेंगे हम वहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में. So now we should take up some questions. So let's take the exercise based on subject verb agreement. Look at the first sentence. Each of these boys. देखिए off है तो these boys plural आएगा, noun तो plural form में हो जाएगा, correct है. लेकिन जो verb होगा वो singular form में. आपको बताया था each of के बाद, one of के बाद, अगर one of beginning में है, either of के बाद, तो यहाँ पर आपका play की जगह होना चाहिए plays. Each of these boys plays games in the playground. यानी आपका आंसर था बी पार्ट. मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल. नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड. नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैज एवर बीन प्रिंटेड, क्योंकि उसकी एक की बात हो रही है ना. बहुत सारे लेक्चर्स तो दिए लेकिन उनमें से एक भी नहीं प्रिंटेड हुआ है. हैज एवर बीन प्रिंटेड. ईदर सोहन और हिज फ्रेंड इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ. ईदर सोहन, आपको ईदर के साथ यहाँ पर सोहन सिंगुलर लगा हुआ है, और के साथ यहाँ पे हिज फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म में है. ईदर और के केस में आपको पता है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, इसलिए यहाँ पर इज रॉन्ग है, ये होना चाहिए आर. फोर्थ सेंटेंस को देखिए. एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो. अब एवरीवन के साथ वी कांट यूज प्लूरल वर्ब, इसलिए आर रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए इज. फिफ्थ. द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड. द आर्टिस्ट, आर्टिकल द आर्टिस्ट से पहले आ रहा है बट राइटर से पहले कुछ नहीं. इट मीन्स इट इज द सेम पर्सन हु इज बोथ. जो आर्टिस्ट भी है और राइटर भी है, इसलिए हैज इज करेक्ट, इसमें नो एरर है. सिक्स्थ सेंटेंस. ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड. ईदर एन ऑफिसर फर्स्ट सब्जेक्ट है, सिंगुलर फॉर्म में है, और के बाद एन असिस्टेंट है, सिंगुलर फॉर्म में है. वी शुड टेक द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, जबकि यहाँ दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए इज एन असिस्टेंट के अकॉर्डिंग. 7. डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क. नाउ डू यू नो दैट इट वॉज आई, ये करेक्ट है. इट वॉज मी मत समझिएगा, ये तो हम प्रोनाउन में डिस्कस कर चुके हैं. इट वॉज आई. हु हैज, लेकिन आई के साथ जो वर्ब आप यूज करते हैं वो हैज नहीं है, आई के साथ तो हम यूज करते हैं हैव, तो इसलिए बी पार्ट आपका आंसर है क्योंकि इसमें एरर है. करेक्शन अगर करना हो तो हैव आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए. द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट colleagues have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony. The prime minister, ये फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है. along with यहाँ आपका कनेक्टर है. his cabinet colleagues, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है जो प्लूरल फॉर्म में है, और along with में आप वर्ब यूज करते हैं according to the first subject. so have is incorrect, it should be has. Prime Minister along with his cabinet colleagues has been welcomed by the chief minister at a formal ceremony. Question number 9 देखिए. Our success or our failure largely depend upon our actions. Our success or our failure. आपको और के ऊपर ध्यान देना है, और के साथ में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है our success है और सेकेंड है our failure. तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चूज करते हैं. यहाँ सेकेंड our failure सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए डिपेंड जो वर्ब है वो रॉन्ग हो गया. वो वर्ब इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए डिपेंड्स, एस लगाना होगा सिंगुलर बनाने के लिए इसको. 10th सेंटेंस देखें. नीदर द माउस नॉर द लॉयन वर कॉट. अब नीदर नॉर का यूज किया गया, ये कनेक्टर है. दो सब्जेक्ट है, माउस सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, और द लॉयन यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर है. तो जो वर्ब आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट लॉयन के अकॉर्डिंग आएगा. वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है वर्ब, ये वर्ब रॉन्ग है, इसको होना चाहिए was. So neither the mouse nor the lion was caught. Moving to 11th, the police has arrested him on the charge of theft. Noun में आपको बताया था कि the police या cattle, इस तरह infantry, ये ऐसे gentry, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर की तरह साउंड करते हैं लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं. तो पुलिस के साथ आपको हैज नहीं यूज करना, हैव यूज कर. अगर पुलिस वुमन कुछ लिखा हुआ है तब तो फिर आप उसमें
मैन और वुमन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, ये इनकरेक्ट हो गया, वेट्स होना चाहिए। आइडिया यहाँ पर सिंगुलर है, दैट इज अपॉर्चुनिटी, दोनों को मिला करके यही सेंस। 13 देखिए, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो होम अर्ली। अब ही एज वेल एज के साथ यहाँ पर देखिए ही लिखा हुआ है और दूसरा प्रोनाउन यहाँ यू लिखा हुआ है। एज वेल एज के साथ में आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है, तो ये लाइक्स होना चाहिए, यहाँ पर ये वर्ब लाइक्स होगा। 14 सेंटेंस में देखिए, नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, ये तो ठीक है, नीदर ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं, दीज टू डॉक्यूमेंट्स हो गया। नंबर भी देखिए 2 है, अगर 3 होता तो रॉन्ग हो जाता, फिर नन आता। और अब आगे देखिए कि इसके बाद जो वर्ब आता है नीदर के बाद, वो चूंकि ना निगेटिव में यूज होता है, लेकिन ये इसका मतलब होता है ना तो इसके लिए ना दूसरे के लिए, नहीं, वन एट ए टाइम। तो सपोर्ट्स होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब की एरर है और बी पार्ट आपका आंसर है, ये सपोर्ट्स योर क्लेम। 15 sentence, the captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming match. The captain first subject है, along with connector है आप, और दूसरा his team, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट। तो along with में आप वर्ब यूज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करते हैं, कैप्टन जो फर्स्ट सब्जेक्ट, आर उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है, इसलिए इसकी जगह पर होना चाहिए is। 16 सेंटेंस देखिए, the ever increasing mechanization of life have led us farther away from daily contact with nature and the crafts of the farm. The ever increasing mechanization of life have led us. देखिए यहाँ actual subject को पहचानिए। The ever increasing mechanization of life. This mechanization is the actual subject. So verb should be according to this and it should be has. ये singular subject है, तो हैज आना चाहिए, हैव की जगह पर, यहाँ ए पार्ट रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। यहाँ द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन, देखिए वर्ब लिखा है हैव नॉट बीन, बट आपको देखना है कि क्या वो एक्चुअल सब्जेक्ट प्लूरल है, जो भी यहाँ प्लूरल वर्ब यूज किया गया। तो यहाँ सबसे पहला काम है आपको कि ए और बी पार्ट में एक्चुअल सब्जेक्ट को पहचानिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट में बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट वहां पर क्या है, बाकी का पार्ट हो सकता है सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो ये बात कर रहा है इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन किसका, टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। अब बेवरेजेस तो चलिए प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन जो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हैज होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन किसका, ये दूसरी बात हो गई, दे आर नॉट एक्चुअल सब्जेक्ट। सो टी, कॉफी, अदर बेवरेजेस, ये तो फिर आपके पेय पदार्थ बेवरेजेस, ये सब आपके सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट दे आर नॉट एक्चुअल सब्जेक्ट। आवर एक्चुअल सब्जेक्ट इज द इंट्रोडक्शन। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि जैसे कि एक बारात पार्टी होती है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव been part of this barat party, like when groom is going to take his bride, and then with the groom the members of family and friends and relatives they go along with him, जिसको आप कहते हैं बारात। तो एक्चुअल आपका जो ब्राइड है, जो दूल्हा है, वो तो एक ही है ना, लेकिन बाकी सारे उसके साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल वही केस है यहाँ पे। जो एक्चुअल सब्जेक्ट है आपका वो है इंट्रोडक्शन। टी, कॉफी, बेवरेजेस, ये सब उसके सिर्फ बाराती हैं, एंड यू शुड नॉट मिस आउट कि यहाँ पर एक्चुअल ब्राइड ग्रूम कौन। सेंटेंस नंबर 18 देखिए, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द हार्डशिप्स, vexations and anxieties are more than he could bear। अब इस सेंटेंस में भी आप देखिए आपका वर्ब यहाँ पर मिलता है आर, यानी प्लूरल फॉर्म में। यू हैव टू चेक आउट वेदर इट इज इन करेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सब्जेक्ट और नॉट। अब देखिए आपके पास हार्डशिप्स भी लिखा है, वेक्सेशंस भी हैं, एंजाइटीज भी हैं, दुख, चिंताएं, पजल्स जो होती हैं, हार्डशिप, मुश्किलें, लेकिन स्ट्रेन इज द एक्चुअल सब्जेक्ट, जैसे वहां इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रेन मतलब जो दबाव, जो स्ट्रेस होता है, किसका, इन सब चीजों का, हार्डशिप्स का, वेक्सेशंस का, एंजाइटीज का, तो दे आर नॉट द एक्चुअल सब्जेक्ट, दे आर बाराती ओनली। द एक्चुअल दूल्हा, ब्राइड ग्रूम इज हियर, और ये इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब होगा। तो द स्ट्रेन, ये इज की, आर की जगह इज होना चाहिए। द स्ट्रेन ऑफ ऑल दीज इज मोर देन ही कुड बेयर। 19th सेंटेंस देखिए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आर वर्ब यहाँ यूज किया जा रहा है, अगेन वही गेम है, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉलेज इज द एक्चुअल सब्जेक्ट। अब नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए आर नहीं होगा, इज होगा। ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस यहाँ एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसके पास वाले को देख करके कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है।
जो कि 20th देखिए, a hot and a cold spring was found near each other, was found। अब देखिए कैसी स्प्रिंग, यानी जो सोते जो निकलते हैं, स्प्रिंग जो झरने होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एक हॉट है, अ हॉट आर्टिकल अ लगा हुआ है, फिर दूसरे के कोल्ड के साथ भी आर्टिकल अ लगा हुआ है। इसका मतलब है डिफरेंट डिटर्मिनर्स यूज हो रहे हैं, यानी टू डिफरेंट स्प्रिंग्स। सो अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, ये वॉज नहीं होगा, इसको करना होगा वर, क्योंकि दो हो गए तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 21 में दिया हुआ है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। ईदर ऑफ द रोड्स, देखिए ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज करते हैं, करेक्ट है, लेकिन लीड जो वर्ब है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, तो ये होना चाहिए लीड्स टू द पार्क। 22nd क्वेश्चन, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। देखिए पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, यहाँ पे कनेक्टर है एज वेल एज, दोनों भी, पेशेंस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है यूएन, और परसिवरेंस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। परसिवरेंस का मतलब होता है जब आप कठिन, उसमें भी जब आप अपना जो स्ट्रगल है, जो हिम्मत है, वो ना हारे और उसको जारी रखें, उसको परसिवरेंस कहते हैं इस क्वालिटी। तो पेशेंस एंड परसिवरेंस धैर्य हो गया। आर नेसेसरी ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आप एज वेल एज में फर्स्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे और फर्स्ट सब्जेक्ट आपका अनकाउंटेबल है, तो इज होना चाहिए। 23rd देखिए, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। नाउ इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, विद आपका कनेक्टर है, जिसका पहला सब्जेक्ट आपका है माई ब्रदर इन लॉ और दूसरा है हिज वाइफ। विद में भी हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं वर्ब को। अब पहला सिंगुलर है माई ब्रदर इन लॉ, इसलिए वर्ब जो है वर रॉन्ग है, इसकी जगह होना चाहिए वॉज। वेरी इजी। 24 देखिए, he is one of those writers who has won acclaim the world over। acclaim का मतलब फेम, तारीफ जिनको मिली है। he is one of those writers, मैंने आपको बताया था कि सीधे सिंपल जुगाड़ विद्या का यूज करिए। वन से वन ऑफ बिगनिंग में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब जो वर्ब है वो इस पूरे के लिए होना चाहिए। he is one of those writers, उन राइटर्स में से एक है। ये देखिए those writers, अब ये राइटर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आ रहा है, जो कैसे हैं, who have, so has की जगह आना चाहिए have, plural verb। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 25th देखिए, the information given by these journals to the exporters। अब इसमें r verb यूज हो रहा है plural, एक्चुअल सब्जेक्ट आपका है द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इंग्लिश में नाउन में आपको बताया था कि अनकाउंटेबल माना जाता है, इसलिए सीधी सी बात है कि आपका वर्ब इज होना चाहिए, आर नहीं। ये पार्ट आपका सी रॉन्ग है और सी का करेक्शन हो गया। एक्चुअल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। अब गिवन बाय दीज जर्नल्स टू द एक्सपोर्टर्स, ये सब सेफ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। 26 देखिए, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, लेकिन फिर आर्टिकल द रिपीट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये फिफ्थ भी था और फाइनल भी था, ये है एक ही एक्ट, इसलिए कंटेन जो वर्ब है वो सही नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए और सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा कंटेन्स, एस लगेगा। सो देखिए 27th क्वेश्चन में क्या होगा, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। अब इस सेंटेंस में वन ऑफ द टेररिस्ट, ये वन ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन यूज करते हैं, ये नाउन प्लूरल फॉर्म में तो ठीक है। ऑफ द कश्मीर वैली, अब इस सेंटेंस में के बाद आर वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ वन ऑफ की बात हो रही, यानी वन की बात हो रही है, ये इज आना चाहिए। नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। अगर वन ऑफ, और देखिए वन ऑफ बिगिनिंग में लिखा हुआ है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, दिखाया था, वहां पर वन ऑफ था ऑथर्स के बारे में। 24th में ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज, यहाँ पे वन ऑफ बिगिनिंग में नहीं था और यहाँ हैव आया, यानी इन सारे राइटर्स की बात की गई थी, यहाँ वन ऑफ बिगिनिंग में है, तो इसको याद रखेंगे। 28th देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ job oriented courses in the self financing colleges have helped many students। अगेन वर्ब आपका have है, आपको एक्चुअल सब्जेक्ट देखना है, एक्चुअल सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन, सो ये इनकरेक्ट हुआ, यहाँ पर have की जगह आपका वर्ब होना चाहिए has। 29 देखें, I who is your friend will stand by you through thick and thin। ये एक फ्रेज है, through thick and thin, इसका मतलब कि बुरा हो या अच्छा हो, हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे जैसे फेवरेबल हो या एडवर्स कंडीशंस हो। आई हु इज योर फ्रेंड, हु इसी आई के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, लेकिन जो वर्ब आ रहा है वो भी तो आई के लिए होना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग। अब आई के साथ तो इज नहीं आता, आई के साथ तो हम यूज करते हैं एम आना चाहिए यहाँ पर। आई हु एम योर फ्रेंड विल स्टैंड बाई। सो हु के साथ आप भूल मत जाइए आई का फॉर्मूला, हमेशा उसको हटा करके आप देख सकते हैं कि ये वर्ब उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। 30th
एंड द लास्ट क्वेश्चन देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ दिस क्लास हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जब भी ईच और ईच चाहे एंड के साथ ऐड करके रखे गए हों, तब भी आपको देखना है कि वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ वर्ब सिंगुलर नहीं है, यानी ये होना चाहिए हैज, क्योंकि इसमें आप एक बॉय और एक गर्ल को एक साथ नहीं ले रहे, एक बॉय या गर्ल कोई भी वन एट अ टाइम उसकी बात हो। सो योर सी पार्ट इज द आंसर इन दिस केस। Alright, so I hope that you will not miss any marks from subject verb agreement chapter. Thank you.